Hello students, good evening to you all. In our unit 1 revision, we have discussed about two important topics. One was the diffusion, another was the osmosis. We have also discussed about some types of the solutions like hypertonic, hypotonic or the isotonic solution. On the basis of the solution, there were several phenomena like uptake of the water from the cell or release of the water from the cell. So we have discussed that intake of the water is called the endosmosis एंड रिलीज ऑफ द वाटर फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड द एक्सोस्मोसिस. इनके बेसिस पे हमने कुछ टर्म्स भी पढ़ी लाइक टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, सोल्यूट प्रेशर और द ऑस्मोटिक प्रेशर. वी हैव ऑल्सो डिस्कस सम पोटेंशियल्स लाइक टर्गर पोटेंशियल, ओके, और वाटर द सोल्यूट पोटेंशियल और द ऑस्मोटिक पोटेंशियल. So in today's video we will discuss about some important terms or two important terms in the plant water relations which are helpful in understanding the movement of the water from one solution to the another solution or from one cell to the another cell. If we talk about any non-living system, suppose these are two solutions. If we know the dPd of both these solutions, we can say the water will move from this solution to this solution or vice versa. If you also know the water potential, then we can also say that the water will move from this solution to this solution or either from this solution to this solution. So both of these terms which we are going to discuss in this video, the dPd, the diffusion pressure deficit, and the water potential, these are useful in studying or useful in observing the movement of water from one cell to the another cell in the plants or from one solution to the another solution in a non-living system. So very firstly we will talk about the dPd. dPd is called the diffusion pressure deficit. डिफ्यूजन प्रेशर में कितनी डेफिसिट, कितनी कमी है, उसको हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बोलते हैं या dPd से रिप्रेजेंट करते हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यूज़ किया जाता है वाटर के मूवमेंट को स्टडी करने के लिए. सपोज हमें दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, दो सेल्स हैं, अगर हमें इसका dPd पता है, फॉर एग्जांपल इसका dPd है 8 और इसका 5, तो हम बता सकते हैं कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव होगा. अगर कंसंट्रेशन की टर्म्स में बात करें तो वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है. ठीक है, अगर यहाँ वाटर के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ 70, तो वाटर विल मूव फ्रॉम 100 to 70 until the equilibrium is achieved. But whenever we'll talk about the dPd or in terms of the dPd, water move from its lower dPd to the higher dPd. यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कंसंट्रेशन से अपोजिट है. कंसंट्रेशन में हायर से लोअर में जाता है, बट इन केस ऑफ द dPd वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स लोअर dPd टू दी हायर dPd. सो अगर इन दोनों सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, तो यहाँ पे लोअर है dPd, यहाँ पे हायर है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन 2 टू solution 1 because from lower dPd to higher dPd. This is the application of the dPd. Now we will talk about the dPd, that what is diffusion pressure deficit. So as I told you earlier, dPd is the amount by which the diffusion pressure of any solution is lowered than that of its pure solvent. कोई भी solution है, solution में solutes भी होते हैं और solvent भी होता है. Suppose water है और solutes हैं आपके ions. ओके, अगर solutes नहीं होते, प्योर सॉल्वेंट होता, सपोज प्योर वाटर ही होता, तो इस सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होता, क्योंकि सारा वाटर मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट इजीली डिफ्यूज़ कर जाते कहीं भी, बिकॉज यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट तो है ही नहीं, यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा बिल्कुल ही. ओके, सो मैक्सिमम जो आपका डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के लिए होता. लेकिन अब सभी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, प्योर सॉल्वेंट तो नहीं होते. जब हम किसी को सॉल्यूशन ही बोल रहे हैं तो उसके अंदर सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, तो वो अपने प्योर सॉल्वेंट से कितना कम है डिफ्यूजन प्रेशर में, कितनी कमी आई है, यानी उसका मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर जो हो सकता था उससे एक्चुअली में सॉल्यूशन में डिफ्यूजन प्रेशर जितना कम है उसको हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बोलते हैं. सो वेरी सिंपली व्हाट विल बी द डेफिनेशन, द अमाउंट बाय विच द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन हैविंग सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज लोअर देन दैट ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक फॉर्मूले से, द dPd इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर वी नो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सोल्यूट पार्टिकल्स टू रेजिस्ट द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर. ओके, कभी भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं चाहेगा कि उसके अंदर अपने आप वाटर आ जाए, चाहे सेल के अंदर वाटर कम भी है, बाहर ज़्यादा है, अगर वाटर आ भी रहा है तो जितने भी सॉल्यूट प्रेजेंट हैं चाहे वो कम ही हो, ओके, या लेकिन वाटर कम है तो सॉल्यूट ज़्यादा है, तो वो रेजिस्ट करना चाहेंगे इस वाटर को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ना हो. अगर वाटर आएगा तो सॉल्यूट्स को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, तो सॉल्यूट्स जो प्रेशर लगाते हैं उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं. टर्गर प्रेशर क्या होता है,
जब वाटर इनवर्ड मूवमेंट कर जाएगा, ठीक है, ऑल्दो रजिस्ट करेंगे बट रजिस्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन हाइयर है बाहर और अंदर लोअर है, तो वाटर के आने से वॉल्स पे जो प्रेशर लगता है उसको हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं. सो DPD इज ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर. दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज फॉर द कैलकुलेटिंग द DPD. अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, टर्गर प्रेशर दिया है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑस्मोटिक प्रेशर है 8, टर्गर प्रेशर है 6. सो व्हाट विल बी द DPD? DPD विल बी 2, 8 minus 6. That's how we will mathematically calculate the diffusion pressure deficit. और इसको यूज़ कैसे करते हैं हम? लोअर DPD से हाइयर DPD में वाटर का मूवमेंट होता है. If any solution having the 2 DPD and the 8, the solution will move from 2 to the 8. And if it will be the concentration of the molecules, then it will be opposite. Water will move from its higher concentration to the lower. But in case of DPD, it is the opposite, that from lower DPD to the higher DPD. So it's about the DPD, diffusion pressure deficit. Next we will start with the water potential. वाटर पोटेंशियल जो होता है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म है लाइक द DPD. इसमें भी हम वाटर का जो मूवमेंट है वो स्टडी करते हैं फ्रॉम एनी सॉल्यूशन टू दी अनदर सॉल्यूशन और फ्रॉम वन सेल टू दी अनदर सॉल्यूशन. दैट हाउ द वाटर विल मूव. हमें क्या पता कि किस सॉल्यूशन से किस सॉल्यूशन में वाटर जाएगा, किस सेल से किस दूसरी सेल में वाटर जाएगा. तो अगर हमें DPD की तरह ही वाटर पोटेंशियल भी नोन है दोनों सेल्स का या दोनों सिस्टम्स का, सॉल्यूशंस का, देन वी कैन से दैट वाटर विल मूव फ्रॉम दिस सेल टू दिस सेल और वाइस वर्सा. सो व्हाट विल हैपन? सेम लाइक द कंसंट्रेशन, द वाटर मूव फ्रॉम इट्स हाइयर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल. अगर ये एक प्लांट सेल है, इसका वाटर पोटेंशियल है -8, ये दूसरी प्लांट सेल है, इसका वाटर पोटेंशियल है -2. सो इस सेल का वाटर पोटेंशियल हाइयर है बिकॉज दिस इज इन -2 बड़ा होता है -8 से, वी ऑल नो. सो वाटर विल मूव फ्रॉम this cell because it is having the more water potential to this cell. So same like the concentration, the water move from higher water potential to the lower water potential. तो DPD और वाटर पोटेंशियल आपस में अपोजिट हैं. किस तरह से? एक तो वाटर मूवमेंट में, वहाँ लोअर से हाइयर में जाता है वाटर, यहाँ हाइयर से लोअर में आएगा. सेकेंड थिंग, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट एक प्रेशर है जबकि वाटर पोटेंशियल एक पोटेंशियल है. ओके. नेक्स्ट थिंग, वाटर पोटेंशियल होता क्या है, थ्योरेटिकली बात करें या डेफिनेशन वाइज बात करें. सो इट इज़ द पोटेंशियल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय देयर काइनेटिक एनर्जी. जो उनकी फ्री एनर्जी होती है, इस एनर्जी से वो कितना मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. उस कैपेसिटी को हम वाटर पोटेंशियल बोलते हैं. वाटर की पावर, वाटर का पोटेंशियल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सेम लाइक द DPD जो प्योर सॉल्वेंट होगा, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, एक भी सॉल्यूट नहीं है, तो कोई दूसरा चाहे कैसा भी सॉल्यूशन हो, इवन कितना भी लेस सॉल्यूट वाला सॉल्यूशन हो जिसमें 99 वाटर मॉलिक्यूल हैं और एक सॉल्यूट का पार्टिकल है, ये एक सॉल्यूशन है. दूसरा ओनली वन सॉल्यूट, 99 सॉल्वेंट, लेकिन इसमें 100 सॉल्वेंट और सॉल्वेंट इज़ वाटर. तो वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर. तो 100 वाले सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन में इसमें जाएगा वाटर, चाहे वहाँ पे एक सॉल्यूट है लेकिन वहाँ पे सॉल्यूट प्रेजेंट है. वाटर की कंसंट्रेशन लेस है एज कम्पेयर टू दिस प्योर सॉल्वेंट. सो वाटर विल मूव फ्रॉम दिस टू दिस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंसंट्रेशन. तो वाटर पोटेंशियल में भी हाइयर से लोअर में जाएगा और इस सॉल्यूशन का हाइयर वाटर पोटेंशियल है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है मॉलिक्यूल्स के पास. वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल के पास कैपेसिटी है कि वो इजीली ऑस्मोटिकली या डिफ्यूज़ होके दूसरी सिस्टम में जा सकते हैं, दूसरे सॉल्यूशन में जा सकते हैं. तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और उसको हम बोलते हैं ज़ीरो. क्योंकि पोटेंशियल्स नेगेटिव में ही होते हैं, तो सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल जो कि है प्योर वाटर का, वो होता है ज़ीरो. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर. ओके, सो इट विल बी ज़ीरो. ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगा प्योर वाटर का? दिस इज द प्योर वाटर, इट इज़ नॉट हैविंग अ सिंगल सॉल्यूट पार्टिकल, दैट्स व्हाई इट इज़ अ प्योर सॉल्वेंट और अ प्योर वाटर. तो इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है. तो ये भी क्या होगा? ज़ीरो होगा. जिसमें कोई सॉल्यूट नहीं है तो सॉल्यूट प्रेशर भी क्या लगाएंगे? ज़ीरो प्रेशर लगाएंगे. तो प्योर वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी ज़ीरो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़ीरो होता है. दिस इज द प्योर वाटर. Osmotic potential is 0, osmotic pressure is 0, and water potential is 0. ओके, तो ये तो थी डेफिनेशन वाटर पोटेंशियल की. वाटर पोटेंशियल को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है
सिंबल होता है आपका वाटर पोटेंशियल के लिए, साई होता है आपका सिंबल, ठीक है, इसको साई से डिनोट करते हैं, साई डब्ल्यू लिखेंगे वाटर पोटेंशियल के लिए हम। दिस इज द इंडिकेशन फॉर द वाटर पोटेंशियल। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। वाटर पोटेंशियल केवल एक सिंगल जो है अलोन कंपोनेंट नहीं है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलकर पूरी टर्म मिलती है वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं लाइक सोल्यूट पोटेंशियल, अब क्योंकि सारे के सारे प्योर सॉल्वेंट तो नहीं है ना सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन की बात करें हम, सॉल्यूशन XYZ 1 2 3 जो भी हमने लिया हुआ है, उसका सोल्यूट पोटेंशियल कितना है, यानी कि सोल्यूट्स में कितनी पावर है, ठीक है, टू रेजिस्ट द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। किसी सॉल्यूशन में अगर पानी आएगा तो उसके सोल्यूट कितना रोक सकते हैं उसको, ठीक है, वो प्लस उसका प्रेशर पोटेंशियल। टर्गर प्रेशर का अपोजिट होता है प्रेशर पोटेंशियल। टर्गर प्रेशर क्या होता है, जितना प्रेशर वाटर इन वॉल्स पे लगा रहा है, ओके, और उसी का पोटेंशियल क्या होता है कि ये लगने से, प्रेशर लगने से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं जो प्रेशर लगा रहे हैं उनमें कितनी कैपेसिटी है लगाने की। प्रेशर तो अमाउंट हो गया कितना प्रेशर लगा रहे हैं, और इन मॉलिक्यूल्स की कैपेसिटी क्या है टू एक्सर्ट दिस प्रेशर, विच प्रेशर, द टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर का पोटेंशियल जो होता है उसको हम प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। अगर टर्गर प्रेशर 5 है तो प्रेशर पोटेंशियल हो जाएगा -5। जिस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर 5 है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल -5 हो जाता है, या सोल्यूट पोटेंशियल -5 हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और एक होता है मैट्रिक्स पोटेंशियल, ठीक है। मैट्रिक्स पोटेंशियल होता है आपका एड्जॉर्प्शन की वजह से, वाटर का जब इम्बिबिशन होता है तो उस टाइम कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इम्बिबिशनल प्रेशर की वजह से, जो हम पढ़ेंगे आगे इम्बिबिशन को। ये चारों चीज़ें मिलके वाटर पोटेंशियल को फॉर्म करती हैं, ओके। बट 2 ऑफ द कंपोनेंट्स, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटी की वजह से कितना पोटेंशियल लग रहा है, और आपका मैट्रिक्स पोटेंशियल या इम्बिबिशनल पोटेंशियल, ये नेग्लिजिबल होते हैं। तो फॉर्मूला होगा वाटर पोटेंशियल विल इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ओके। जिस तरह से डीपीडी का फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, दूसरी तरह से इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको जो है सोल्यूट पोटेंशियल दे सकते हैं और प्रेशर पोटेंशियल दे सकते हैं, और आपसे वाटर पोटेंशियल पूछा जा सकता है। वाटर पोटेंशियल दे सकते हैं, सोल्यूट या प्रेशर पोटेंशियल पूछे जा सकते हैं। सो दिस विल बी दी फॉर्मूला। Again I am repeating this thing that water will move from its lower DPD to the higher DPD, and from its higher water potential to the lower water potential. So that's all for today. Have a nice day.